Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 10th of June 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, just have a thought to recharge yourself. The thought of the day is keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. What is the meaning of this thought? This thought is indicating the positivity. It means when you have positive attitude, then the negative things, the hurdles you can avoid. It means when you have the friendship with positive people, उन्हीं की तरफ अगर आपका फेस रहेगा, if you have positive thinking, then जो negative thinking है वो आपके पास नहीं आएंगी, आपको दिखाई भी नहीं देंगी the negative thoughts. So be always positive and look forward. Now we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. How many Prime Ministers of India have secured the third term of their office tenure? So अभी तक ऐसे Prime Minister कितने हुए हैं जिन्होंने 3 times Prime Minister का जो शपथ है, ओथ है वो लिया. So there has been only 2 Prime Minister in the history of Indian after independence. That there were only 2 Prime Minister. First was J.L. Nehru. And the another has become now Narendra Modi. So there has been only 2 Prime Ministers who have taken the oath 3 times. Nitish Kumar, the CM of Bihar, is the leader of which political party? Because this one is the leader. Now there are so many questions about his credibility that he can change his side anytime. And he has now given the support to NDA government at the center. So he is the leader of which party? So currently he is the leader of JDU, that is Janata Dal United. So he is the leader of Janata Dal United and he is the CM of Bihar. Another alliance partner of NDA is Chandrababu Naidu and it is the leader of which party? So he is the leader of TDP, that is Telugu Desam Party. Who is the Prime Minister of Bangladesh who joined the oath ceremony of Prime Minister of India? She is Sheikh Hasina. So Sheikh Hasina is the Prime Minister of Bangladesh. Another fact about her is that she is the longest serving Prime Minister in the world. She is the only longest terming lady Prime Minister of the world. So world में अब तक सबसे ज़्यादा कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर पद पर रही है तो शी इज शेख हसीना. Who is the PM of Bhutan? Because PM of Bhutan was also the person who joined the prime minister's oath ceremony. So he is Pushp Kamal Dahal Prachand. So he is the person from Nepal. Next is, what is the correct option regarding the inflation targets in India? So inflation target इंडिया में 2.2% से 6% का टारगेट उसमें होता है. Actually the set target for inflation is 4%, but there is permission of 2% plus minus. 2% plus minus का इसमें है. It means 4% का टारगेट हम रखते हैं तो ये 6% तक जा सकता है उधर और इधर 2% तक जा सकता है. So this is the target set by the Monetary Policy Committee. The real GDP growth for the financial year 2024-25 by the RBI has been forecasted or projected. तो कितनी जो है GDP की ग्रोथ को फोरकास्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड किया गया है? So it is 7.2%. That in the upcoming financial year, the real GDP growth of Indian economy will be 7.2%. Another question is the percentage of Nota voter recorded in 2024 general elections has been. So what is the correct? It has been increased, decreased, no change, there is no data. So in the recent election of 2024 general elections, the Nota percentage has been decreased. But in the northeastern India, the Nota percent has been increased. Next question is question number 9. Health experts around the world has cautioned the world regarding the threat of which virus? So on Bakrid or Eid ul Juha.
सो अभी रिसेंटली वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड को क्वेश्चन किया है, उनको सचेत किया है कि यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑन बकरीद। तो ये किस वायरस की जो है थ्रेट की बात यहाँ पर हो रही है? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट H5N1। ये बड़ा ही थ्रेटफुल वायरस है, बड़ा ही डेंजरस वायरस है। इसमें जो डेथ की चांसेस अराउंड 50% तक देखे गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 50% चांसेस इसमें डेथ के हैं। Shinkaku Islands in news is currently under the control of, because recently Japanese government protested against the uh, 2 ships or 4 ships of Chinese Navy, और उन्होंने ये जो सेंकाकू आइलैंड है उसको चारों तरफ से घेरा था, उसके आसपास में वो आए थे, तो उसको कॉर्डन किया था। सो ये सेंकाकू आइलैंड कहाँ पर है? इट इज इन जापान। सो इट वाज प्रोटेस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। Today's current affairs are the one of the most important news for today is in the recently or in the currently going on the World Cup 2020 International, the team India, that is Man in Blue. So Man in Blue is India's team in the cricket, and recently the match was organized in New York, that is World Cup, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है डिफीट किया है। ठीक है, सो अभी ये रिजल्ट हमारे पास में है, अभी जो करंटली क्रिकेट में मैच जो चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि इंडिया के जो 7 लीडर्स हैं और उन्होंने इंडिया में सेरेमनी को, द सेरेमनी ऑफ ओथ स्वेयरिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। सो अभी इसमें कौन कौन से लीडर्स आए हैं आप देख लीजिए, सर्टेन टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं। सो लीडर्स ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज, ओनली 7 नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर आए थे, जो अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसकी सेरेमनी में। कहाँ पर हुई है ये? राष्ट्रपति भवन, दैट इज प्रेसिडेंट हाउस। अब इसमें कौन कौन है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो आप इनको लर्न कर लेना, एटलीस्ट आपको ये बेसिक से पॉइंट्स पता हो। मालदीव्स के तो आपको पता ही होंगे, मोहम्मद मुइज़ू। सेशेल्स की वाइस प्रेसिडेंट आए थे अहमद अफीफ, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। मॉरिशियस की प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, पीएम थे, जिनका नाम है सेरिंग तोब्गे। तो इन पीपल्स ने, इन लीडर्स ने, इन डिग्निटरीज ने इंडिया में इस बार प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ सेरेमनी है उसको अटेंड किया था। हाँ, एक जो है इस बार थोड़ा सा चेंज इसमें हमें देखने को मिला, तो ये था कि इस बार हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वगैरह को इनवाइट नहीं किया। अदरवाइज पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया था, तो भाई आप लोग आओ और हम रिलेशंस को थोड़ा सा ठीक करते हैं, बट उनकी जो टेररिज्म पर उनकी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होती है। और इंडिया ने सारे के सारे कंट्रीज के साथ मीटिंग की और कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, बोला आने वाले टाइम में भी हम इंटरनेशनल एरेना में हम ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते रहेंगे और हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए लीडर। सो इतनी सारी गर्मी में बहुत सारे लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, प्लस बाद में अगर ये मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, अगर ये इन्होंने अटेंड किया है तो इट मीन्स अब हमारे जो रिलेशंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, हॉट टॉक जो चल रही थी, उसमें थोड़ा सा रिसेट हमें देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव, और ये बन गई हैं नेवी में पहली वुमेन जो कि हेलीकॉप्टर की पायलट हैं। सो सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव बिकम इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सो अब तक की ये फर्स्ट पायलट है। नाम क्या है इनका? अनामिका बी राजीव। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जब ये इनकी पासिंग आउट परेड होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उनके सोल्जर्स पर क्या लगाया जाता है? गोल्डन विंग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप उनको उड़ा सकते हैं। ये जो गोल्डन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये उनको लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है ईयू पार्लियामेंट वोट। ईयू में जो पार्लियामेंट वोट है फार राइट आइज गेन, इसमें अगर मैं आपसे बात कहूं तो आपको दिखेगा कि जो यूनाइटेड
सॉरी यूरोपियन यूनियन है, वहां पर पार्लियामेंट में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। और आपको ये पता होगा दैट यूईयू यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग से पार्लियामेंट है। इट मींस जो कंट्रीज है वहां पर उनकी अपनी पार्लियामेंट है, लेकिन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन जिसमें अराउंड 27 मेंबर्स हैं, ठीक है, वहां के पीपल ये जो 27 कंट्रीज हैं वहां से पूरे यूरोप के लिए एक पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और उस पार्लियामेंट में 720 सीट्स हैं और फिर मिलकर के सारे यूरोप के लिए यहाँ से रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी इलेक्शंस हैं, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। और चांसेस ये लग रहे हैं कि इसमें जो फार राइट्स वाले पार्टीज हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं वो इसमें इलेक्ट होकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में फिर है एक अनदर न्यूज, इजराइल वॉर कैबिनेट मिनिस्टर गैंट्स, इनका नाम है बेनी गैंट्स। यू नो दैट हमास और इजराइल का अभी जो वॉर है वो कंटिन्यूस है, और अब इसमें क्या हुआ है कि इजराइल के अपने अंदर की जो पार्टीज है वहां पर भी अलायंस में गवर्नमेंट बनती है, ऐसा होता है। तो इजराइल की जो वॉर कैबिनेट बनाई गई थी इस युद्ध को लड़ने के लिए, तो उसमें ये एक मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। अब इन्होंने क्या किया है, उसमें से रिजाइन कर दिया। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल की अंदर भी उसकी गवर्नमेंट में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिसमें इजराइल थोड़ा सा हमको बैकफुट पर दिखाई दे सकता है, बिकॉज इजराइल की खुद की जो पॉपुलेशन है उस जनता में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वॉर के थोड़ा सा अगेंस्ट में बात भी कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, हम इस कैबिनेट से इसलिए रिजाइन कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उनके पास में पोस्ट वॉर या पोस्ट विक्ट्री उसके बाद का कोई प्लान नहीं है। इट मीन्स जब गजा वाला रीजन और हमास पर ये लोग विक्ट्री अपनी अचीव कर लेंगे तब उसके बाद आप क्या करोगे, उस रीजन को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे उसको हैंडल करोगे, क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऐसे इश्यूज पर क्या हुआ है तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिसेंटली वहां की आर्मी की 143rd जो डिवीजन है वहां के ब्रिगेडियर एवी रोजनफील्ड, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इन्होंने रिजाइन इसलिए किया कि जो 7 अक्टूबर 2023 जब अटैक हुआ था इजराइल की पॉपुलेशन पर, तो इन्होंने ये कहा है कि मैं उस अटैक को नहीं रोक पाया, तो मैं उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं इसमें से रिजाइन कर रहा हूं यहाँ की आर्मी से। ठीक है, सो इस तरीके की अभी सिचुएशंस वहां पर चल रही हैं। बाकी जो है और अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ में अगेन हम फिर मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।